Welcome to the KU podcast. Today we have Dr. Kamal Kumar sir, who's going to talk to us about, I think, everything around youth sports and a lot of initiatives. तो शुरुआत सर एक सवाल से ये करना चाहेंगे कि आप कॉलेज में बैठे हुए हैं, आपके कॉलेज के दिन कैसे थे एंड व्हाट मेड यू गेट इनटू पब्लिक सर्विस? आई वुड लव फॉर दिस टॉक टू go between a little bit of personal insights about you and then maybe about the work you do. Right. So, namaste. I can recall my college days here sitting, and thank you that you have reminded me that I was also a student. Arey, Because after joining public services, I forgot that I am a public servant. Because I am looking after youth across the country since last 25 years, I am in this service. So I am mingled with the youth at different states, of different groups, age groups, and since this 20 years, the demography has also been changed. The youth, they are also been changed. So I have never came out of the college days. But frankly speaking, when I was in college, so I was dreaming of becoming something. May not be the public servant, but it was not in my intention to be a public servant. I was involved in acting, I was involved in singing, I was a throughout literary champion in my college days. क्या बात It है? debate, make it poetry, and I was from science background. So, just I'm telling you how much interesting I was in my college days because you told me. In 1988, when I was in my graduation first year, I had a project on HIV अच्छा, in 1988. 88 जी जी. So, and in my table, there were no students, there were doctors, they were coming to me on my table in the college days because I was from a very tier 3 city, you can say. So, doctors used to come to me and they're asking, what is this? We have not heard about this. Because that time, though I was in a rural area, but I was reading that time the journal Science Reporter. It was very popular among students. So I was a vivid reader on that. So in college days, I was actively involved in literary activities apart from my studies. So not to boast the thing, in graduation, my university, Utkal University from where I have graduated, that time it was having 400 affiliated colleges. And among that, in my subject, I was university rank holder in my graduation. Right. Wow. So why I am telling this thing? Because people are thinking that involvement in the literary and extracurricular activities is wastage of the career. That is really a misconception. So then after graduation, I did my post-graduation, then certain research. I worked in biodiversity area in Vitarkanika mangrove area. I have done my research. Then in 2001, I cleared UPSC and joined HRD as a public servant. So then when I got to work with the youth in the National Service Scheme, which is mainly in the higher educational department, so I forgot that I am a government officer. I still am very proud of this thing that I am a youth and I am amongst the youth. जी. So in a nutshell, you can say the college days, what I have done and what was my inclination. I think this is me making me stand out of my colleagues, of my batchmates also. So this is the thing. Right. That is so nice कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी मतलब जोर डाला गया. ये यूपीएससी का कीड़ा कब चढ़ा आपको? व्हेन डिड यू लाइक, मतलब आप अगर गाना गाते थे, यू मस्ट हैव बीन लाइक अ, I mean, I don't know, head turner. All the girls would have been like, "My, this is the guy in college." For UPSC, how did that turn happen, sir? ऐसा तो कीड़ा की बात नहीं है. जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं हाँ. तो थोड़ा सा रहता है कि आपने देखा हमारा बैचमेट जो साथ में पढ़ता था, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर बन गया, कोई एडिशनल एसपी बन गया, तो दिमाग में आया कि चलो ट्राई करते हैं. अच्छा. ऐसे ही ट्राई करते हैं. ट्राई करते हैं कि ये दिस इज ऑल्सो कर सकते हैं. अच्छा. Because I was doing research, being a scientist to talk into the public service, it is little bit different. I haven't heard of something like this. Very interesting. I can say that there are lots of stories of my research days I used to do, but because today there is internet is available,
and by the click of a mouse you are getting all the information. But when we used to work, we have to do a lot on the literature to do the field work and all the things. And working in the mangrove estuary in those days, which was purely, it was not accessible properly. So I worked in that area on zooplankton. My topic was zooplankton. I study of zooplankton in Vitarakannika mangrove estuary. So now this is also, if you tell people mangrove, so they'll think also either it is mango grove. हाँ, आम सोचेंगे या मर्द कहीं उग रहे हैं. So mangrove. what is the thing? So being in the science research and doing all these things, so it was not in the mind. But सोचे कि चलो देखते हैं कि ये भी कुछ चीज है तो ट्राई करते हैं. और उसको किए इतने साल हो गए अब, मतलब. तो कभी कभी जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो कभी कभी आई एम फीलिंग जिलस कि आप लोगों के पास इतने फैसिलिटीज हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हो. हम बिना फैसिलिटीज में इतने करते थे. शायद I can remember I used to walk for 2 to 3 kilometers for a simple sampling in the field, the field work. So because when you work on the environmental biology, ecology type of thing, so lots of field work are involved. So my advice, what I'm giving to the youth these days, that don't go for the overnight success. There is nothing overnight success. You can see the result, but you don't see how much efforts, how much pain the person gives in that. So there is no overnight success. So you have to work hard. And another thing, whatever is your passion, do it passionately. So this is my mantra. No, and I like the fact that I think like a lot of us who teach, ये instant gratification जो आजकल के youngsters में है, that is very problematic. While that can be challenged in a very nice way, sir, आपने इतने साल काम किया है. हाँ, and you're still young, and I'll also repeat, you are very young. He is a very young, dynamic person here today. Sir, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप, have you seen any difference in, because youth आते हैं, बदलता रहता है, from the era of maybe doing your own research to today when it's all about a click away, आपको कुछ चिंताजनक और कुछ बहुत अच्छी चीज है जो आपने नोट किया है? Yes, चिंता तो बहुत हो रही है क्योंकि थैंक गॉड आज की डेट में जो भी यूथ है अंतर्मुखी बहुत हो चुके. They are now confined to themselves and confined to a virtual world which is really dangerous. जो मैं सोचता हूँ कि 20 साल पहले ये चीज था ही नहीं. जी. When we saw the youth, they were soiling their hands in the field, which is now, if you want to bring them back, it is very difficult. They are in their own virtual world, which is not real. And they are thinking that, okay, this is the reality and this is the real thing. And what is happening, when they come to the reality, they are not able and they are not ready to accept that reality. So it results in frustration, in depression, and sometimes it leads to suicide or it leads to drugs. So जैसे मैंने कहा कि रातों रात कोई चौकाचौंध वाला जिंदगी बन जाना या ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज नथिंग. सो यूथ, ठीक है, आपको सक्सेस दिखती है, बट यू शुड सी हाउ मच पेन, हाउ मच हार्ड वर्क द पर्सन हैज पुट इनटू दैट. तो ये जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक हमारा जो यूथ है, मेरा युवा मित्रों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप फील्ड में उतरिए. और थैंक्स गॉड कि एनएसएस जैसा कार्यक्रम है जिसमें जमीनी हकीकत हमारे युवाओं को याद दिलाती है और दिखाती है. और मैं शायद कि दूसरे सर्विसेज मिलता तो शायद इतना मन में खुशी नहीं होता जितना आज हो रहा है. सर, एनएसएस जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो हमें एनएसएस और एनसीसी ये दोनों का कंपल्सरी चॉइस होता था. और एक स्पोर्ट्स भी था. जो हम खाली, बहुत ऑनेस्टली कह रही हैं, हम लड़के देखने जाते थे. तो वी यूज्ड टू गो चीयर अप फॉर द बॉयज. वी वर इन एन ऑल गर्ल्स कॉलेज, पर बाकी वी वर ऑलवेज लुकिंग एट ईदर एनएसएस और एनसीसी. सो सर, व्हाई वुड ऑल दीज ऑप्शंस बी मोर इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक आपने कहा दुनिया वर्चुअल हो चुकी है, तो आइडिया एंड लॉजिक ऑफ एवरीथिंग. सर, मैंने किसी को थोड़ा सा, किसी ने कैंसर की बात कर दी, मैंने लाइक किया तो मुझे लगा मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान हो गया है. तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो. सर, ये डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम स्पेशली, एंड व्हाई?
Yes, it is very important. Why? This number one, what you told, I fully agree with this. That we have to come out of the virtual world. जी Because virtual world, everything looks good. Yeah, everything looks bad. But the reality is different. जी 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 And what is the main thing is that now these days, I may be wrong, this monetization of the videos which is going on, in that some negative changes, negative things are been scripted and it has been promoted like anything. But our youth, they are not in a position to differentiate between the real and virtual things. So for that, and another thing, let me tell you frankly, हमारे जो युवा है एक तो अंतर्मुखी हो जाते हैं और दूसरा जो ह्यूमैनिटी की कैरेक्टर्स है जैसे सिंपैथी है एम्पैथी है और समाज के लिए अपनी संवेदनाएं हैं ये सारे हम संवेदना शून्य हो जाते हैं रास्ते में अगर एक्सीडेंट हम देखते हैं वीडियो बनाने शुरू हो जाते हैं या उसमें एक्शन करते उसने कैसा बोल रहा है कैसा चीख रहा है ये बात करते हैं ना कि उसको हॉस्पिटल ले की बात करें ना कि एम्बुलेंस को बुलाने की बात करें तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है ये नंबर वन है नंबर टू जब हम अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू ईट समथिंग वी हैव टू हैव समथिंग तो अगर हम ये तो नहीं होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड से खाना आएगा हाँ खाना तो फिजिकली खाना ही पड़ेगा तो हमें ये चाहते हैं कि आज की जो युवा है ये हकीकत में कुछ करे और रियलिटी को देखें हाँ तो सर क्योंकि इतनी सारी पाबंदियां हैं प्रॉब्लम्स हैं सर आपका हाल ही में क्या मेन फोकस है यूथ को लेकर और क्या उसमें भी खास करके महिलाओं को लेकर यंग विमेन को लेकर भी कुछ यू नो व्हाट इज दैट यू वर्किंग ऑन जैसे आपने कहा कि अभी मैं दो चीज़ें के ऊपर बताना चाहूँगा कि पहले आपका जो सवाल का उसका मैं पूरा जवाब दे दूँ एनएसएस और एनसीसी क्यों प्लीज हम अपने युवाओं को हकीकत के साथ रूबरू कराना चाहते हैं एनसीसी में जो ट्रेनिंग दी जाती है मेनली डिफेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू वर्क एट द बॉर्डर हम सोल्जर कैसे बने अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में लड़ाई लड़ेंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे फिजिकली वो हैव टू गो क्योंकि अभी रिसेंटली जो सिचुएशन हुआ हमने देखा हमारे युवा काफ़ी बढ़ चढ़ कर आए लेकिन उतना बॉर्डर पे जरूरत है युवाओं की तो इसीलिए एनसीसी की इम्पोर्टेंस है दूसरा जब बात आती है एनएसएस की बॉर्डर पे तो हम बाहर के दुश्मनों से लड़ लेंगे जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं और समाज में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको कौन लड़ेगा उसको कैसे लड़ेंगे हम उसको आइडेंटिफाई करना समाज में प्रॉब्लम क्या है समाज में इशू क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके खिलाफ काम करना तो उसके लिए नेशनल सर्विस स्कीम में राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हम कहते हैं इसकी बारी आती है कॉलेज तो हमारे युवाओं को इसमें हमें मौका देते हैं जहाँ तक अभी की बात आती है कि रिसेंटली हमने क्या डेवलपमेंट किया है या जो आज की तारीख में जो कार्यक्रम चल रहा है एक है माई भारत अक्टूबर 31, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया पोर्टल माई भारत जिसका फुल फॉर्म मेरा युवा भारत सरदार साहब की जन्मशतवार्षिकी उनके जयंती पे इसको लॉन्च किया गया इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है कि आज की जो युवा हैं चले समाज के अंदर जाके काम करते हैं समाज सेवा करते हैं इसके साथ साथ दे शुड डू समथिंग इसलिए कैसे करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटर्नशिप की बात आई तो ये जो पोर्टल फॉर्मेशन हुआ है इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जैसे बात होती है कि कहाँ पे जाएगा किसको अप्रोच करेगा कौन सी एजेंसी इसको एक्सेप्ट करेगा इसका पहचान तो कहीं पे है नहीं सिंपली स्टूडेंट है या यूथ है साइमल्टेनियसली मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसी को अप्रोच किया जिसके चलते कुछ सरकारी संगठन सरकारी संस्था इसमें अपना एक्सपीरियंस लॉन्च कर चुके हैं फॉर एग्जांपल रिसेंटली 1 तारीख से हमारा जो जन औषधि केंद्र है उसमें इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है पूरे भारत में 1200 जन औषधि केंद्र में हमारे यूथ जाके काम कर सकते हैं आज इंटर्न
in any capacity. In any capacity, हाँ, be a retailer, maybe a moderator, maybe डॉक्यूमेंट करना हो, लिखना हो. ब्लॉकचेन की सप्लाई जा रहा है उसको मेंटेन करना हो, लोगों को मेडिसिन देने में हो, उसके लिए करना क्या है? सिंपल, आप अपने जिले के पास जो भी जन औषधि केंद्र है, आप ऑनलाइन जाइए, क्लिक करिए, जन औषधि केंद्र के पास आपका बायोडाटा पहुंच गया, आप उसका एक्सेप्ट हो गया, आप वहाँ पे 120 घंटे की काम करें एंड यू गेट ए सर्टिफिकेट व्हिच इज वैलिड एज पर यूजीसी मैंडेट. यूजीसी ने उसको मान्य कर दिया इंटर्नशिप के बराबर. राइट. तो ये जो इंटर्नशिप की चेंज है, जी. पहले हम वॉलेंटरली कर लेते थे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए कर लेते थे, लेकिन अभी इट इज सर्टिफाइड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोग्राम. जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसमें साइबर सिक्योरिटी, इसमें सिविल डिफेंस, जो भी काफ़ी जोर शोर से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. देन इसमें आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, देन दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये लोग इंटर्नशिप देना शुरू कर चुके हैं. एंड दिस इज फॉर द यूथ. जो ये माई एंड ऑल दीज आर द माई भारत. राइट. अभी ईपीएफ, भविष्य जो कर्मचारी भविष्य निधि है, ईपीएफ भी इसके ऊपर आ गया. राइट. अभी इंश्योरेंस भी इस सेक्टर में आने वाले हैं. हॉस्पिटल्स इसमें हो चुके हैं जी. ताकि एक हमने पिछले दिवाली के टाइम पे कार्यक्रम चला था, सेवा से सीखें. तो हॉस्पिटल में देखिए अभी कैसा होता है, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, गांव के लोग आते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है, कहाँ पे टेस्टिंग होना है, कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ पता नहीं चलता. तो इसलिए हमारे जो यूथ है एनएसएस की बात, कोई भी यूथ है जो चाहे कि मैं कुछ सेवाएं देना चाहता हूँ, तो दीज आर बास्केट ऑफ सर्विसेज, जिसमें अपना एक्सपीरियंस भी उसको होगा और समाज को भी कुछ मिलेगा. जी. पता है सर, आप इतना जोर लगा रहे हैं ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, और मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि हमारा सेंटर अभी अगस्त में 2 साल पुराना होगा, एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव सेंटर फॉर एक्सपीरियंशियल एंड इमर्सिव लर्निंग. तो मुझे ये पता है कि पॉडकास्ट के बाद मुझे आपसे बहुत चीज़ों पे तुरंत अगर हम कुछ कोलैबोरेट कर सके, नहीं, इसमें सबसे बढ़िया चीज बहुत बढ़िया होगा. आपको बता सकता हूँ कि इसमें सबसे जो ब्यूटी ऑफ द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू आर एट योर डेस्क. आप अपने सिस्टम पे बैठिए, उसमें क्लिक करिए, वो सारा कुछ आपके सामने है. हाँ नहीं, बट इंक्लूडिंग हमारा हेल्पलाइन भी है. राइट. जो माई भारत पोर्टल की हेल्पलाइन है, उसमें भी आप करेंगे. और जो सबसे बड़ी चीज है, आपका यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट अपना इंटर्नशिप उसमें फ्लोट कर सकता है. ओह, दैट इज ब्रिलियंट. कि हमने इसमें क्या हुआ है कि नॉलेज इंस्टीट्यूशन पार्टनर, देखिए भारत में जब यूजीसी ने इंटर्नशिप की बात करी, क्योंकि दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, सो आई हैड ए क्लोज इंटरेक्शन विद द पीपल इन द यूजीसी. तो जितने इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, प्रैक्टिकली इतना इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए कहाँ करना पड़ेगा, तो हैव टू क्रिएट द इंटर्नशिप. तो इसीलिए हम इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि इंस्टीट्यूट अपना इंटर्नशिप क्रिएट कर सकता है, एंड एन नंबर ऑफ वैकेंसीज यू कैन क्रिएट. जी. तो इतना सरकार तो अपने सामने से सुविधाएं देने के लिए तैयार है, और हम उसके पीछे लगे हुए हैं. जी. जी. और ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और रिसेंटली 2 अप्रैल 2025 यूजीसी का सर्कुलर आ चुका है. द इंटर्नशिप, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम व्हिच यू आर गेटिंग ऑन माई भारत पोर्टल विल बी ट्रीटेड at par with the internship as per UGC guidelines. अच्छा. तो जैसे आपने कहा कि अभी नया क्या है, अभी नया ये बहुत बढ़िया. नहीं, this is, I don't know about the podcast, but this is a very brilliant note to, I think, our team. This is sitting here, sir. For example, for example, I'm telling you, you can put one internship on how to do the podcast. हाँ. Or it is at par, as you said. That is the beauty of it. It's at par because you do the internship, you float the internship, then student will apply, you take them and give them the certificate will be auto-generated by the portal after 120 hours. After 120 hours. Oh my God, that is amazing. And for that, you don't have to go anywhere. And personally, of course, for Gujarat, I am the competent authority to approve. Oh, great. नहीं, पर हम तो चाहते हैं कि ये जो आपने अस्पताल और ये सारी बातें कही, वो बहुत ज़रूरी है. Because here I'm dealing with 19, 21-year-olds who are aspiring to either be journalists, but they don't want to get out to do stories. And आपने एक बहुत सुंदर बात कही beginning में कि हाथ मैला नहीं कर रहे हैं. And that is both a euphemism and, you know, that you have to step out. You have to go out of your environment. You have to go out of your comfort zone. जी. Then only you can get the name and fame what you see about the other.
जी अदरवाइज यू विल बी सिंपली अनदर पर्सन। करेक्ट है। आई थिंक वो डेप्थ नहीं रहता है फिर। एक ऊपर से जो आपने कहा ना कि फटाफट मिल गया, हाँ। या आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ओवरनाइट ओवरनाइट नहीं वो जी 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 सर, स्पेशली फॉर से क्योंकि आप गुजरात से 10 साल से हैं। जस्ट आई Please, please, वो महिलाओं वाला अगर है तो बताइए वाला जो प्लीज सर। महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम स्पेशली एनएसएस चलाता है टू मेक देम एम्पावर्ड ऑन सेल्फ डिफेंस। जो हम हमारे पार्ट में है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनको देने का। जी जो हमारे गर्ल वॉलंटियर है, हाँ इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोग्राम राइट कि वी इम्पार्ट देम द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। जी खास करके हमारे जो लड़कियां हैं, और गुजरात पुलिस के तरफ से भी हमें काफी सपोर्ट मिलता है राइट जब इस ट्रेनिंग को हम देते हैं। देते हैं जी। देखिए, जब लोग सेल्फ डिफेंस की बातें बहुत करते हैं, इसको टेक्निकली कहा जाता है यूएसी, ऑन आर्म कॉम्बैट ट्रेनिंग। अच्छा यूएसी, ऑन आर्म कॉम्बैट, अच्छा विदाउट कोई वेपन लड़ाई करता। हाँ तो जिसको हम साधारण भाषा, बोलचाल भाषा में हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। अगर इसकी थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, सेल्फ डिफेंस में अगर 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है तो उसमें 10 मिनट टेक्निक सिखा जाती है। उसमें 50 मिनट स्टेमिना बिल्टअप करना, अपने आप को स्ट्रांग बना, ये सिखाई जाती है। जो साधारण सभी को पता, सेल्फ मतलब फाइटिंग की, कराटे, जूडो नहीं, टेक्निक बहुत कम है, लेकिन स्टैमिना और जो सशक्त होना, सशक्त मतलब शारीरिक सशक्त, फिजिकली सशक्त और मेंटली सशक्त, ये तीनों चीजें। तो ये जो कंपोनेंट है महिलाओं के लिए खास करके, ये एनएसएस में हम लेके, मतलब ये चल रहा है एनएसएस में। अभी 3 चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, सिविल डिफेंस ज्वाइन करना, जो कि हमारे माई भारत पोर्टल के माध्यम से सिविल डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, तो यू हैव बिकम ए सिविल डिफेंस वॉरियर। नंबर 2, दिस इज ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं, अभी जून से स्टार्ट होगा, आपदा मित्र। अच्छा, आपदा मित्र, यस। अच्छा थोड़ा बताएं इसके बारे में। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा प्रोग्राम है कि देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, या मानिए कि अभी जैसे जो सिचुएशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो पर्सन हु इज इन द सोसाइटी, दे आर द फास्ट रेस्पोंडर्स, दे आर द सफरर्स एज वेल एज द फास्ट रेस्पोंडर्स। क्योंकि कहीं से भी आपके पास सब जो हेल्प आने में टेक्स टाइम, तो ये जो फास्ट रेस्पोंडर है, अगर उसको थोड़ा बहुत हम बेसिक टेक्निक सिखा दें तो कितना हेल्प होगा समाज के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम है आपदा मित्र, जिनको हमारे जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है, एनडीएमए के अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर, वो लोग ट्रेन करेंगे कि प्राकृतिक आपदा में कैसे आप हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें हम गुजरात में करीबन 2500 युवा मित्रों को ट्रेन करेंगे, और इसमें 50% तो एनएसएस की प्रिंसिपल है। हमने कभी एनएसएस की कोई भी कार्यक्रम आप देखेंगे 50%, 50-50, 50% बॉय तो 50% गर्ल्स। जी जी। तो ये करीबन 1,500 से ऊपर हम महिलाओं को, जो हमारे गर्ल वॉलंटियर हैं, उनको भी इसमें ट्रेन करेंगे। राइट। इसके कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल चीजें, प्रभु की कृपा से मैंने भारत के अलग अलग जगह पे काम करने के मौका मुझे मिला है। खास करके मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में दिल्ली में करीबन 10 साल की एक्सपीरियंस रहा है। तीनों को मिला के आपको बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे यूथ के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें मैं उनके सामने बताना चाहूँगा कि दिस विल बी आई ओपनर फॉर देम। जी, इससे मैंने 3 जगह की एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बंगाल का एग्जाम्पल दूंगा, जहाँ पे मैंने काफ़ी 3 साल के आसपास काम किया। एक सुनामी जो भयंकर त्रासदी थी, उसका एग्जाम्पल दूंगा। और तीसरा गुजरात की एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि गुजरात भी मेरा कर्मभूमि, करीबन मैंने 7-8 साल मैंने गुजरात में पिछले और अभी को मिला के काम किया है। आइला करके त्रासदी हुई थी वेस्ट बंगाल में 2008 की पीरियड, आइला तूफान। हालांकि बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, इसमें तूफान तो आते ही रहते हैं।
हमारे कुछ मित्र ये ट्रेनिंग, हमने बेसिक ट्रेनिंग की मैंने ऑर्गेनाइज कराया था कलकत्ता में, ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने घर जा रहे थे काकद्वीप। तो वहां पे एक बोट ट्रेजेडी हुई और ये बच्चे ट्रेनिंग लेके जस्ट पहुंचे थे। ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो जब तक दमकल वाले वहां पे जाके पहुंचे तो ये हमारे बच्चे वहां पे काम पे लग गए तुरंत। तो इट वाज ए हेल्प। और आप ताज्जुब करेंगे कि जो हमारे एनएसएस वॉलेंटियर्स सुंदरबन और एरिया में रहते हैं, वो लोग काफी हेल्पफुल रहे हैं प्राकृतिक आपदा के दौरान काम करने के लिए। राइट। संदेशखाली, बखाली जो एरिया है उस एरिया में साउथ 24 प्रोग्राम। दूसरा, सुनामी के पीरियड पे 2008 ना? सुनामी, हाँ 2005 दिसंबर, करेक्ट। to the precise. Port Naga, not Andaman Nagapattinam. started and then It was enter South India almost. So Andaman Nicobar over both, it was highly devastated. I got a call from Home Ministry that can you give me 100 volunteers tomorrow morning who are ready to work without food and water. That means real dedication. So he astonished to see next day morning 200 volunteers from Madras University were lined up at Chennai. 100 were selected and airlifted to Andaman. Andamans. Everybody were going to Andaman, nobody was going to Nicobar. So our volunteer immediately went to Nicobar and they were there for 15 days only on biscuit, boiled potato and water. So this shows the training and commitment of our youth. तीसरा, गुजरात की बात करता हूँ। 2017 बनासकांठा में जो जबरदस्त फ्लड हुआ, बनासकांठा फ्लड्स, हाँ, जो जानवर कीचड़ के नीचे, कादव के नीचे दब गए थे, हमारे बच्चे उनकी डेड बॉडी को निकाल के उसमें ब्लीचिंग डाल के, केरोसिन डाल उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर रहे थे। डेड बॉडी निकाले थे, उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर रहे थे। और दे रैन अराउंड 104 और 105 community kitchens for 10 days in the villages. So this is the part of the training that trained, they were inclined towards the services. तो इस सब को देखते हुए आपदा मित्र में हम अपने बच्चों को एनरोल करना चाह रहे हैं। तो ये that is a brilliant also nation building. तो हम बड़ा बड़ा शब्द बोलते हैं, लेकिन it starts with, जैसे आपने कहा कि you just be ready to help each other. हम तो छोटे बात करते हैं, रास्ते में थूको मत, ये राष्ट्र सेवा है जी। प्लास्टिक की रैपर बाहर मत फेंको, अपने जेब में लेके जाओ, ये राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा के लिए कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है जी, छोटी छोटी चीजें अगर आप कर लेंगे ये राष्ट्र सेवा हो जाए। फिर गुजरात के टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज के लिए खास, अदर देन दीज प्रोग्राम्स व्हिच आर जनरली फॉर द नेशन, गुजरात स्पेसिफिक, is there anything that we can look forward to या something that the youngsters should avail? Because problem यही होता है सर, हम अक्सर बहुत ग्लैमराइज करके, हम बुरा ना माने पर सरकार की तरफ देखते ही नहीं है। जैसे आपने जो बताया हमें ही लगा कि अरे बाप रे, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। तो ऐसा खास, बिकॉज आपने खुद शुरुआत में भी कहा यू कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस इन ओडिशा, नॉट अ टायर आल्सो, नॉट इवन अ टायर, नो टायर सिटी, बट हाउ, what are the plans for Gujarat state, especially with the tier 1 and tier 2 cities? अभी रिसेंटली हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है आपदा मित्र, जिसमें हम गुजरात में करीबन 2000 युवाओं को इसमें ट्रेन करेंगे। आपदा मित्र जो है कि जैसे मैंने बता रहा आपको कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा हो या जैसे अभी रिसेंट सिचुएशन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुआ, तो सोसाइटी में जाते हैं तो हमारे जो सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं इंक्लूडिंग आवर यूथ, दे आर द सफरर्स एज वेल एज द फास्ट रिस्पॉन्डर। तो जब तक उनके पास कोई ट्रेंड हेल्प नहीं पहुंचे तब तक कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, जो कि हमारे ये युवा मित्र करेंगे, जिनको हम आपदा मित्र नाम पे बुला रहे हैं, और इनका ट्रेनिंग एनडीआरएफ के साथ मिलकर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। अगले वाले जो, जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होगा,
एक तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि अभी जो अगले सालों की ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट की बेहद उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी माई भारत पोर्टल के थ्रू जाएगा, तो ये नंबर 1 रहेगी। नंबर 2 आपदा मित्र, जिसके ऊपर मैंने बोला कि उसकी हम ट्रेन करेंगे। तीसरा चीज़ जो हम करने के लिए सोच रहे हैं अभी, कितना उसमें हम सक्सेसफुल होंगे, हम एक पायलट प्रोजेक्ट किया था अहमदाबाद में, क्लास 2 कैरियर। जो हमारे वॉलंटियर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग जाएंगे अपने स्कूल में 11th-12th जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको जाके बताएंगे कैरियर के बारे में कि क्या क्या कैरियर हो सकता है, राइट, जो कि शायद इनको नहीं था। जी, तो जो 11th-12th के बच्चों को पता चल जाए कि क्या क्या कैरियर हम ले सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हम टायर 1 सिटीज़ में चलाने की सोच रहे हैं। जहाँ तक टायर 2, टायर 3 की बात आती है, वहाँ पर जो हमारा एनएसएस की रेगुलर एक्टिविटी, स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम है, उसको थोड़ा सा और इनोवेटिव वे में काम करेंगे। जो एक मेजर कंपोनेंट इसमें है श्रमदान और दान की जो परिभाषा है, मैं पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे जो युवा है आज की तारीख में अपने अंदर सिकुड़ के रह रहा है, सिमट के रह रहा है, तो उसको बाहर कैसे निकलेगा, समाज के साथ डायरेक्टली कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। उसके लिए जो एनएसएस की स्पेशल कैंप है, जिसमें 7 दिन गांव के अंदर जाके बच्चा रहता है, स्लम के अंदर जाके रहता है 7 दिन, तो ये कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और सघन कराएंगे। आपको ताज्जुब होगा, अभी रिसेंटली हम साणंद तालुका में एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे हम गए थे, हमारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसमें कैंप करने गए हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने इसमें क्या सीखा, क्योंकि एलाइट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये बच्चे पीजी में रह रहे हैं, तो खाना पीना भी ज़रूरत नहीं, चिंता की बात नहीं। तो वो लोग गए, तो उनको मैंने पूछा कि आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट यू एक्सपीरियंस द बेस्ट थिंग। तो एक लड़का जो आँख में आंसू लिए बोला, जो मुझे छू गई, कि सब मैं घर में मम्मी के ऊपर 2 बार रोटी फेंक लिया था, क्योंकि रोटी सही में गोल नहीं था और उसमें काला पड़ गया था रोटी। और यहाँ पे जब कैंप में खुद को रोटी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ा, क्योंकि कैंप में एनएसएस में जैसे मैंने कहा, वी टेक देम टू सॉइल देयर हैंड्स, तो खुद कुछ करें, खाना भी खुद बनाते हैं। तो अगर जब रोटी बनाने के लिए गया, 3 दिन तो लग गए मुझे रोटी बनने में, गोल तो बात छोड़ दीजिए, पक जाए, और रोटी जल जाता था पूरा, एकदम रोटी नहीं, वो तो वो कंडा, गोबर की कंडे जैसे बन गया। तब मुझे पता चला कि मेरे माँ मेरे लिए कितने प्यार से रोटी बनाई थी। वो जो लेबर की जो महत्व है, द कॉस्ट ऑफ लेबर, द वैल्यू ऑफ लेबर, वो मुझे पता चला। आगे तो छोड़िए, मैं जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करता है उसको मैं बहुत प्यार से देखूँ, बहुत इज्जत से देखूँ। आई नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लेबर। तो ये चीज़ें, कुछ बच्चों ने कहा कि हम पहले बार कीचड़ में पैदल गए, जैसे उनको घर में बैठते ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक वेजिटेबल आ गया। ऑर्गेनिक वेजिटेबल कैसे बनता है, खेत में फार्मर कैसे बनाता है, तो उस गांव में उनको देखने को मिला। तो वहां पे तो जूते पहन के जा नहीं सकते, जूते उतार के पैदल जाना पड़ा खेत पे। सब पहले बार मैंने खेत पे गया, मैंने कहा ये भारत माता है जिसके किसान उठ के इसको नमन करता है, और हकीकत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मौका मिला उस भारत माँ की हकीकत को देखने का। तो ये जो प्रैक्टिकल बैक टू द रूट्स, बैक टू द हेरिटेज, इसके ऊपर एनएसएस के काम हम करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। Sir, as private universities, other than the so many programs that the government and जो आपने भी एक आध बताया, what can we do to make sure कि ये जो momentum है वो और तेजी से बढ़े, हम क्या कर सकते हैं? इसमें मैं बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, जो कि हमें ये आई यूज टू दिस क्वेश्चन कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चलता है, एक सवाल आता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि देयर इज मच मोर स्कोप, कि आप और अच्छे से चला सकते हैं। कि जो बाकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ पे युवा इतना संपन्न भी नहीं है जो यहाँ के युवा है, तो ये इनोवेटिव प्रोग्राम दे सकते हैं। बहुत सारे इनोवेशन सब बच्चे करते हैं। जैसे आप ही के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल अगर हम दें,
कि जो कोई प्रोग्राम्स में खाना आता है, जितना कंजप्शन और बाकी उसके बाद क्या होता है जनरली कि थ्रो आउट कर देता है या डिस्पोज कर देते हैं। बट यहाँ की जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स है, उसने उस बचे हुए खाना जो कि प्रॉपर वे में उसको पैक करके नियर बाई एरिया में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो एनएसएस में एंटी सोशल, एंटी कम्युनल और एंटी रिलीजियन, ये 3 चीज छोड़ के कोई भी काम आप करेंगे हमें मंजूर है। तो देयर इज नो बाउंड्री इन एनएसएस एक्टिविटीज। इसमें कोई एक सरहद हमने नहीं बनाया कि आपको सिर्फ यही करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, जस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वो ही बहुत यही राष्ट्र सेवा है। अगर कैंपस में हमारे जो एलएसएस की वॉलंटियर विद्यार्थी हैं, अगर ये एंश्योर कर लें कि आपके कैंपस में जितने 2 व्हीलर है उतना हेलमेट है, बहुत ही छोटी सी चीज है, एंड दे कैन एंश्योर, तो ये एक रोड सेफ्टी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 4 व्हीलर चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया? हम पीछे की सीट बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ड्राइवर और को जो नेविगेटर सीट में जो बैठा है, पैसेंजर जो साइड सीट में, इतना अगर हम इंश्योर करा पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। और जहाँ तक आगे बढ़कर इसको बढ़ा के प्रोग्राम को करने वाली बात है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियर बाई कोई स्कूल है जहाँ पे हम जाके पढ़ा भी सकते हैं वहाँ के बच्चों को, वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग जाके दे सकते हैं, वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, एआई को जाके प्रमोट कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल की बच्चा शायद उसको पता नहीं हो, वहाँ पे हम जाके ज्ञान दे सकते हैं। अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट है, तो नियर बाई स्कूल के बच्चों का अगर हम न्यूट्रिशनल सैंपल करें, कितना माल नरिश्ड है, उसकी वैल्यू को चेक करें, उनकी एक रिकॉर्ड बनाए, फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कॉन्स्टेंटली उसको मेजर करें। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जो अपने सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी से मिलता जुलता काम अगर हम डिवाइस करके फील्ड में कर पाए तो दैट विल बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी। सर, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आई थिंक माई स्ट्रगल्स एज समवन लीडिंग द सेंटर फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप तो 10 साल एंड प्लस कर रहे हैं, इज दैट while the values and heart is at the right place, convincing students, especially of private universities, is not been easy. कि भैया एक बार आ गए, जैसे आपने कहा, गांव में 2 दिन रहने के बाद उन्हें लगता है कि बाप रे, दिस इज समथिंग आई शुड हैव नोन। जैसे डिजाइन में भी हम कहते हैं कि आप सिर्फ सब्यसाची को नहीं देखें, आप 10 दिन अगर क्राफ्ट्स पीपल के विलेज में रहेंगे तो शाम को जब बैठ के वो गाने गाते हैं, वहां से एक्चुअल डिजाइन आता है, जो कहानी बोलते हैं। जब 3 बजे उठते हैं, यू नो व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड हाउ डू दे वर्क विद देम टू अंडरस्टैंड, you know. So sir, this is just brilliant. Is there any key sort of message that you want to give the youngsters, sir? 3 lines in NSS which is very very vital, whether it is private is government. We don't treat the volunteers as a private volunteer or government volunteer. मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ गुजरात में कि मेरे लिए जो विद्यार्थी है, मेरे लिए विद्यार्थी है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होता, वो विद्यार्थी ही है, वो युवा है। उसकी संस्था गवर्नमेंट हो सकता है, उसकी संस्था प्राइवेट हो सकता है, मैं उनके लिए काम नहीं करता। 3 चीजें एनएसएस की मूल मंत्र है, कॉलेज टू नॉलेज, कैंपस टू कम्युनिटी एंड क्लास टू मास। वाह, क्या बात है सर। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, नॉलेज टू एक्शन। सो कैंपस टू कम्युनिटी, कॉलेज टू विलेज, कॉलेज टू विलेज जी, कैंपस टू कम्युनिटी। सो कम्युनिटी में भी, रूरल कम्युनिटी में भी, अर्बन कम्युनिटी में भी। सो कैंपस टू कम्युनिटी, कॉलेज टू विलेज, नॉलेज टू एक्शन। मतलब सारा संसार आ गया इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा इसको जो आप अपनी हाईटेक लैंग्वेज में बोलेंगे तो लैब टू लैंड। उफ, एनएसएस मतलब ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे आपके विद्यार्थी जितने हैं, जितने एलाइट है, उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सोचने की तरीका, अगर वो एलाइट है और इज कैपेबल, तो उसकी सोच उतना होना चाहिए कि जो जनरल स्टूडेंट जिसको कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके सोच से अगर आपका सोच 3 गुना ज़्यादा नहीं है,
तो फिर आप उतना काबिल तो है ही नहीं। तो इसलिए आपका काबिलियत को प्रूफ करने के लिए इससे बढ़िया मौका शायद और कहीं मिलेगा। सो मेक इट नॉलेज टू एक्शन and transfer all these techniques from lab to the land. No, thank you so much. Especially, I think, for a generation that loves to talk about organic food, but जैसे आपने कहा, doesn't know what goes behind it, or who just loves talks to talk about हम ये मुद्दे पे protest कर रहे हैं without understanding the real ground realities, you know, which I think is very, and especially in a country like India, which is so diverse across. It's very important. But thank you so much, sir. Actually, I'm glad कि आपने literature में जितना भी किया, I think वो सब, that must be the reason why there's so much, right, adding on to you, sir. What do you like about Gujarat? Your favorite things? The people. मुझे लगा पहले खाना बोलोगे, कोई बात नहीं, sir. People. The people, the culture, the heritage, and the belongingness. Right, right. But that's so nice, sir. And I really hope कि as KU we can get further working with you. And मैं तो seriously इस podcast के बाद, ma'am, I would want his number. We'd love to sort of, हम already कर रहे हैं, so can we systematically do it? Will be a fantastic thing. Thank you so much, sir. आप कुछ और कहना चाहेंगे? Thank you.